How to this complete. Okay, so Assalamu alaikum everyone. Again, since we are recording, and so we have to start. It's a little bit. I have to do it in English so that it's just part of DSMES program, but it's basically ये उर्दू में ही होगा हमारा. हम्म So आज का जो topic है, today's topic is stresses related to diabetes management and basically Asian population को हम focus कर रहे हैं. So वो हम stresses को discuss करेंगे and I will tell you कि what are the stresses which are very common in our culture and जो कि I'm sure कि not just our culture but other cultures as well. So इसमें ये होगा कि I'm going to share a PDF that I have created and वो मैं आप लोगों के साथ share करूंगी. I just want all of you to mute your mic and once we are done with the presentation, then you can ask questions. If there is someone asking in between, which is very important and which they think they will forget by the end of the presentation, they are welcome to ask. So let me share my screen. Okay, and let's see where we are. Or maybe they should write it down, so. Okay, or write down the question. That is right. Yes. No, that's Okay, let's see. Let's see if this is the right presentation. Okay. Yeah, this is the right Kalau one. mga ito wachit na. Please mute yourself. Oh, sige. Thank you. Okay. Dali skip ya cerita. I cannot identify who's Including talking, speech. but please mute yourself. think Farida, सुल्तान अली is talking. आप म्यूट कर दो सुल्तान भाई. इसकी ठीक है, ये बड़ी नहीं है. it's फरीद भाई Farida आप Ali. म्यूट कर दो. Hmm. फरीद अली म्यूट योरसेल्फ. Farida. Okay. Okay, so let's start with the stress related to diabetes in Asian population. अच्छा, अब I mean, stresses related to diabetes in Asian population. So हम stresses से हमारा क्या मतलब होता है? तो वो होता ये है कि there are different stresses होते हैं from मेरा फोटो तो आ रहा सुल्तान अली कैन यू म्यूट योरसेल्फ. अली नहीं है, अलाउद्दीन रहमान का म्यूट पे नहीं है, यास्मीन हुसैन नहीं है, सुल्तान अली तो म्यूट पर है. अच्छा, okay. ये अलाउद्दीन रहमान का म्यूट करो. हाँ. Alauddin Rahman is not using, I'm using my phone. And my Okay, phone is not let's working. just continue. Okay, and you know like सुल्तान अली का भी हट गया म्यूट से, तो प्लीज आप भी म्यूट कर दें. or Okay. next time what I will do is I will do in my settings so Yes. all the listeners will be on mute anyways then to Okay. start off with. Okay, and then I will open Thank it you. when right at the end. Okay, thank you. Okay, so इसमें ये है the stresses जो होते हैं ना वो maybe some of you have faced those stressors or some of you have not. Maybe आपका कोई relative होगा जो face कर रहे होंगे ये, लेकिन somehow the other we do listen to these stressors जो कि हमें पता चलता है कि ये हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट में इनका इंटरफेरेंस होता है या अगर नहीं भी होता है तो हमें इसके सही से बारे में नहीं पता होता है तो वी डोंट रियली नो एग्जैक्टली द जिसको कहते हैं ना कि वी जस्ट डू द ट्रायल एंड एरर थिंग एंड अगर वो सही हो जाता है तो हम समझते हैं कि वो सही है और हमारा कल्चरल बिलीव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अगर नहीं हो रहा होता है तो we think there is something wrong with the medications and things. So let's look at the क्या stresses होते हैं. So traditional beliefs about health and illness. तो इसमें ये होता है कि जैसे कुछ एशियन कल्चर्स में डायबिटीज को जो है वो लेते हैं कि ये एक इम्बैलेंस बॉडी में कुछ हो रहा होता है एंड इट्स लाइक they don't think it's a medical condition really, and again not everything will be related to you, so don't think कि आपको अगर ये बिलीव नहीं है तो किसी और को भी नहीं होगा, बिकॉज देयर आर millions and millions of people around जिनके हर एक के बड़े different beliefs रहते हैं, so we have to cater and we have to address everyone. So उसमें ये होता है कि वो some of the cultures वो कहते हैं कि इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, बस हम खाना ठीक से खा लें और वो जो है वो सही हो जाएगा. then there are some cultures जो कि हम herbal remedies को जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर हम जो है वो फोकियत देते हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि अच्छा नहीं ये हर्ब से, एंड वो अभी भी मैं बहुत सारी आपको
यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मैं देखती हूँ जिसमें कि वो कहते हैं कि 2 दिन में डायबिटीज खत्म हो जाती है, और ये कर लें तो आपका ओवरनाइट आपकी शुगर बिल्कुल जो है वो खत्म हो जाएगी, विच इज नॉट ट्रू, एंड इट इज लाइक यू हैव टू सी, यू हैव टू सी कि ये साइंस बैक्ड है कि नहीं है, बिकॉज विदाउट अ साइंस बैक इट्स लाइक अ ट्रायल एंड एरर। किसी को ठीक है हो जाता है, बेहतर हो जाता है तो सही है, और किसी को नहीं होता है तो सो इट हैज टू बी, जब हम एजुकेट करते हैं लोगों को तो इट शुड बी साइंस बेस्ड होना चाहिए है रेमेडीज को ना। सो लाइक कुछ चाइनीज जो इमिग्रेंट्स हैं वो कहते हैं कि acupuncture और herbal remedies जो हैं over prescribed diabetes medication, and they think they are more natural and effective, which like it's partly true, it's not like completely true. So अगर आप medication ले रहे हैं and then you do all other integrated जो acupuncture है या herbal remedies हो, that will that can help and that might help, but इट्स नॉट कि आप कंप्लीटली मेडिकेशंस को छोड़ दें एंड ये सिर्फ ये सारी चीजें कर कर हर्बल रेमेडी से तो यू विल बी एबल टू डायबिटीज को आप जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, और यहाँ पर भी अब काफ़ी जो है वो आपको सुनने को मिल रहा होता है। देन पाकिस्तानी कल्चर में वी ऑफन सीक आउट होम्योपैथिक, जो है वो पाकिस्तानी कल्चर में काफ़ी जो है वो मतलब वो करती है। अच्छा, एक लाइक आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट का भी मैंने रिसेंटली मैं सुन रही थी, इसकी स्किन केयर की भी बहुत ज्यादा जो है वो मतलब पॉपुलर हो रही हैं, बट आई डोंट नो, आई हैव रेड समवेयर कि जिसमें कि इसमें काफी हैवी मेटल कंटेंट इनकी प्रोडक्ट्स में होते हैं। सो अगेन आई एम नॉट 100% श्योर कि इनका क्या वो होता है, बट और एंड सिमिलरली सम होम्योपैथिक जो है वो might be helpful, but you must seek your physician, or you must seek out your dietitian, और वो कि इससे जो है वो आपका कोई इंटरेक्शन, जो अभी हम आगे जाकर उसको मैं डिस्कस करूंगी कि किन चीज़ों से आपकी मेडिकेशंस का इंटरेक्शन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि राइट एट द एंड में आपसे डिस्कस करूंगी उसको। अच्छा, नाउ यहाँ पर कुछ जो है जैसे कि हमने लाइक डिटेल में मैं आपको एंड में करूंगी, बट यहाँ पर है कि पॉसिबल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो एशियन कल्चर्स में जो है वो ये हो रहा है कि इम्बैलेंसेस होता है, तो यहाँ पर दिस में लीड इंडिविजुअल्स टू फोकस मोर ऑन डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस based on traditional beliefs rather than seeking medical intervention. So that's one of the drawbacks of this belief. Now the second one is the herbal remedies. Now herbal remedies, some can support overall well-being. They may also interfere with prescribed medication. So you have to understand this कि वो मे बी आपका ओवरऑल बेहतर हो जाएगा, but they do have potential interactions with your diabetes medication. नाउ ऑक्यूपंक्चर का जो है वो हेल्प करता है, स्ट्रेस और सर्कुलेशन वगैरह में आपकी हेल्प करता है, बट इट डज नॉट रिप्लेस योर डायबिटीज मेडिकेशन, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। Then Ayurvedic treatment may not align with evidence-based diabetes care, and patient need to know how Ayurvedic practices can support their diabetes care, while one can have potential interaction between Ayurvedic herbs and Western medication. Now, यहाँ पर, like this is just some examples, but I'm going to skip this part here because I'm going to discuss it right at the end in a proper charting मैंने इसको बनाया है, so वो chart में आप लोगों के साथ discuss करती हूँ। अच्छा, now second वाला जो होता है वो ये है कि dietary practices and food perceptions. So many Asian diets are high in carbohydrate, particularly rice and noodles, which can make blood sugar control difficult, which is very common, जो कि हमारे से ज्यादा जो है वो आपको चाइनीज और कोरियन एंड ये सारे में आपको राइस एंड नूडल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नजर आता है, which is again Asian उसमें आता है. So I mean, even though they seem very slim and they seem very thin and वो सारा कुछ होता है, but somehow I think कि उनके साथ ये है कि maybe they are genetically इस तरह के भी होते हैं, not just genetically, but they have a lot of vegetables, high vegetable consumption है उनका, and not pure जो कि हमारा
बहुत ही हाई, नॉट जस्ट हमारा राइस एंड वो ज़्यादा होता है, बट हमारा राइस, रोटी और शुगर का आई थिंक हमारा एशियन, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर में जो है शुगर इनटेक हमारा बहुत हाई होता है. Now, some patients may resist dietary changes due to strong cultural ties to traditional food. So, अब अगर ये कि लेट्स से कि आपका एक कोई डायबिटिक पेशेंट आता है और वो, तो उनको इनिशियली बहुत मुश्किल होती है टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ट्रेडिशनल फूड अपनी जगह के ऊपर है, बट उसको किस तरह से आपने पोर्शन कंट्रोल करना है, उसको किस तरह से आपने जो है वो डाइटरी चेंजेस को अपनी रोजमर्रा की हैबिट्स में आपको शामिल करना है, वो जो है वो एक बैरियर बन जाता है फिर थोड़ा. अगेन लाइक इट्स इंडिविजुअली अलग अलग सबकी वो होती है. सो मे बी सम ऑफ यू आर वेरी गुड इन चेंजिंग योर हैबिट्स, सम ऑफ यू आर वेरी रिलक्टेंट. सो इट्स फॉर ओवरऑल, जो आपको मैं एक ये ओवरऑल एक पिक्चर बता रही हूँ. अच्छा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स आर वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, एंड बहुत सारे जो है वो कहना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, बहुत बड़ी एक कहना चाहिए वीकनेस होती है जबकि आप जब इंटरेक्ट करते हैं विद द फिजिशियन. सो आप लोगों को मे बी इतना महसूस नहीं होता होगा, मे बी मुझे लगता है बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, अफगानीज कम्युनिटी, और आपको सपोर्ट बहुत है, एंड आपके यू हैव योर ओन डॉक्टर्स एज वेल, एंड नॉट जस्ट डॉक्टर्स बट जैसे आप कम्युनिटी सपोर्ट में आप लोग एक दूसरे की वो हेल्प आउट करते हैं. But I think outside your community, if you see Asian population, unko bada, they do struggle with this, and especially if you don't have any connection with the doctors and anyone that you know. So अगर आपको purely यहाँ के doctor से interact करना पड़ता है तो उसमें काफी सारे barriers आ जाते हैं. Then this is a big one, social stigma in mental health. Now, in some Asian communities, जो chronic illness like diabetes जो होते हैं उसको stigmatize कर दिया जाता है, और उसमें ये होता है कि उसमें वो कहते हैं, and this is like I'm telling you from my personal जो मेरा एक a friend of mine, her daughter was diagnosed when she was 14, and then that was the time जो कि उनको था कि हाँ अभी, मतलब not her own family, I'm telling about the extended family, and oh like अब शादी कैसे होगी, and diabetes. So diabetes is like आपको लगता है जैसे कि एक कोई कंटेजियस डिजीज है, जैसे कि अगर एक को हो जाएगी तो वो सारे लोगों को हो जाएगी. सो ऑल दीज बिलीव्स आर वेरी लाइक बहुत ही कल्चरली ओरिएंटेड, और वो उस वक्त होते हैं जब आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं होती है. सो दीज एंड द फैमिली with diabetic children, diabetic patient, they need a lot of mental support as well, because it's not just the disease itself which is causing a lot of things, but उसके around जो चीजें हो रही होती हैं, उसके around जो लोग आपको कहते हैं कि ओ ये कैसे हो गया, like there's a lot of like कहना चाहिए कि wrong remarks आपको मिलते हैं, आपके बच्चों को मिलते हैं. So that is pretty common in our culture. एंड वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें कॉमन हैं हमारे उसमें, लेकिन दिस इज वन रिलेटेड टू डायबिटीज. अच्छा, नाउ हेल्थ केयर सिस्टम नेविगेशन के लिए जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है कि काफी लोगों को अपने मेडिकेयर बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं, या ये कि आपको जो बहुत अच्छे आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं आपको उनका जो है वो आपको ज्यादा नहीं पता होता है. So, and then what are the dietary challenges in Asian population? So like as I said, many Asian diets are rice heavy, making it difficult to follow low carb recommendations for diabetes management. And some Chinese immigrants avoid cold food due to traditional beliefs, and then maintaining bodily balance, which can affect their willingness to consume certain diabetic friendly meals. So, it's all the small things, and ये जो है ना, I feel कि मैंने बहुत कम इसमें चीजों को कवर किया है, but there are a lot more especially in like the Chinese immigrants, they have a very particular way of when it comes to food choices, they have a very particular likes and dislikes. अच्छा, so यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए एक चार्ट बनाया है. If you can see this chart,
This is okay. So this is traditional treatment, and then possible interaction with diabetes medication and the potential effects. So yeah, it's important. And like how I tell you, I tell you why it is important. Just give me 1 second. I have to lock my front door. So okay. So okay. So the अच्छा ये जो है ना ये आपको आई वुड ये आपको पीडीएफ जो है वो आप लोगों को सबको मिलेगा. एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप लोग इनमें से कोई भी चीज लेते हैं या somebody टेक else अश्वगंधा या हाँ हाँ अगर आप लोग लेते हैं कोई भी चीज तो यू मस्ट हैव दिस इन प्रिंट का आपको करें प्रिंट कर कर आप अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि इसका क्या इंटरेक्शन है. नाउ अश्वगंधा जो है वो इट्स आयुर्वेदिक वो है एंड इट्स लाइक वो कहते हैं कि इट्स गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम इट्स एंड इट माइट बी वेरी गुड. बट अगर आप जो है वो जैसे थायराइड मेडिकेशन ले रहे हैं तो ये it may interact with thyroid medication like levothyroxine, and it could increase thyroid hormone level excessively. So you have to be very careful. And then garlic. अच्छा garlic का जो है ना वो जो हम अपना garlic use कर रहे होते हैं वो तो that's not what I'm talking about. Garlic, some people take garlic pills. अच्छा जो हम garlic use कर रहे होते हैं वो तो ठीक है जब आप उसको unless कि you are eating raw garlic, unless you are eating separately, कुछ लोग करते हैं वो भी. तो अगर वो है तो फिर तो आपको देखना होगा. बट ये जो गार्लिक है ये it may alter metabolism of anti-diabetic drug like metformin, and you can have unexpected changes in your blood sugar levels. It can fluctuate your blood sugar. And now this one is a homeopathic. This I don't know how to pronounce this. So jambulanum or something homeopathic medication hai. It may enhance blood sugar lowering effect of insulin or sulfonylurea, which increases the risk of hypoglycemia. So you can go into low blood sugar. So when whatever medication you are taking, homeopathic, you must see the ingredient. Okay. Then Okay. another homeopathic medication is uranium and nitricum, and is often used for excessive thirst and urination in diabetes. So जैसे अब आपको अगर आप किसी होम्योपैथिक के पास जा रहे हैं आप उसको वो कह रहे हैं आपको कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी यूरिनेशन की ज्यादा है या ये कि आपको बहुत प्यास लग रही है तो वो फिर आपको ये मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं. तो इंटरेक्शन विद डायबिटीज ड्रग्स इज नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड. इफेक्ट्स मे बी अनप्रिडिक्टेबल. तो इसका जो ये इसका इंटरेक्शन ऐसा वो नहीं है बट ये कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं पता है. नो इट कुड आपके अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस हो सकती हैं आपकी. कैन यू प्लीज switch can you please mute yourself whoever is not muted please. Thank you. अब्दुल रहमान Thank you. अलाउद्दीन रहमान. फोन म्यूट पे कर दो प्लीज. Lauddin Rahman is not in there. Somebody else. I see him. Maybe Sultan Ali again. They unmute. Okay, can Please. you all just mute yourself, or if somebody can, let me see if I can, but I don't think because I'm sharing my screen right now. So anyways, let's go to, अच्छा, this is the big one, fenugreek, जो कि हम और आप Fenugreek. जानते हैं, it's called सौंफ, right? यही है, ये नहीं मेथी है, fenugreek is मेथी actually. मेथी. हाँ, it's not सौंफ, it's मेथी. तो मेथी का जो है वो काफी हमारा कॉमन यूज होता है, which I feel के especially sometimes I also say कि आपका जो joint pain होता है, especially your knee pain और वो सब, तो उसमें fenugreek फायदा करती है. बट अगेन जो भी आप चीज ले रहे होंगे एक चीज को आपने ख्याल रखना है कि इसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेना. ये नहीं कि अब अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है तो यू टेक इट फॉर एवर. नो, यू टेक इट फॉर मे बी महीना भर के लिए लिया फिर उसके बाद छोड़ दिया. एंड देन सो बिकॉज दीज हैव सम स्पाइसेस के भी अपने इनके इफेक्ट्स होते हैं. So you have to be careful. So it can enhance the effects of diabetes medication, and it may cause excessive drops in blood sugar levels. So you have to be careful with your methi. Then bitter melon. Acha, I don't know what bitter melon is. Anyone knows bitter melon? करेला. करेला bitter melon कहते हैं. Yes. अच्छा,
सो अब ये वाला भी हमारा बहुत यूज होता है। तो अगर आप करेला का जूस, जैसे कि somebody was taking करेला जूस आई थिंक, Yeah, I take it. यू टेक करेला जूस, बट Yeah. अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसके साथ, तो यू हैव टू एडजस्ट योर मेडिकेशन डोज। अगर आप डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो यू हैव टू टेल योर वो, एंड देन बी वेरी विजिलेंट अबाउट योर ब्लड शुगर लेवल। सो Okay. सिमिलरली टू इंसुलिन, राइट? सो अच्छा, जिनसेंग ये एक वो है सप्लीमेंट है कोई, जिनसेंग, ये दिस इज सम दिस मे इंटरेक्ट विद इंसुलिन एंड oral diabetes. It can lower blood sugar level excessively. Turmeric, curcumin, and ये तो बहुत समझें कि एक everyone uses, I think, turmeric, because turmeric का सबको ये है कि anti-inflammatory है, and everyone uses it with क्या बोलते हैं उसको, cinnamon and honey के साथ use करते हैं. So it may enhance the effects of metformin and insulin. So again, like whenever you are taking, it could lead to hypoglycemia, which is low blood sugar. You must talk to your physician, you must talk to your dietitian, you must see कि अच्छा, ये कितना ले रहे हैं. And जब आपका ग्लूकोज मॉनिटरिंग इसलिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है when you are खुद से जो है ना, वो आप बगैर किसी से मशवरे के don't start taking any of these supplements by just looking at a YouTube video, और वो कह रहे हैं कि हमें इससे फायदा हुआ है, तो कि आपको भी इससे फायदा होगा. It's not going to be like that. So you have to make sure कि your medication जो है वो, अगर आप उसको ले रहे हैं और आपकी ब्लड शुगर एकदम से बहुत लो हो रही है, तो you stop it for a while, and then और your medication को आप अपने physician से कहकर adjust करवाएं, but don't just take it without any supervision. Then आपका जो होता है वो cinnamon again, it can lower blood sugar naturally, but it may amplify effects of diabetes medication. So again, all these आपको सही बताए हुए हैं कि ये blood sugar lower कर देती है, but when you are taking it with your diabetes medication, you have to be very careful. Aloe vera may interact with glucose lowering drugs, can cause blood sugar to drop too low. Now, aloe vera is, I'm not very woe about eating aloe vera. I have heard about, like putting out on skin, but this I'm not very, very familiar with, like having aloe vera in the system. I don't know how that. I drink half a cup. It's really good. Acha, you think, and so you are doing a lot of natural lowering. So we'll talk about it at the end. So Sure. yeah. So now ginger may affect insulin sensitivity, and it could enhance the effects of diabetes medication. St. John's wort, that is also like a herbal supplement, I think. It can interfere with drug metabolism, and it reduced the effectiveness of diabetes medication. That is again one thing. Now green tea, which may interact with blood sugar regulating drugs, could alter glucose metabolism. So there's I drink a green tea. lot of green tea. That's okay. Yeah, if you see, Hibiscus tea. yeah, Is it hibiscus tea? we'll come to it as well. But again, anything a lot is not not Okay. recommended. Okay. So, okay, I will discuss this in just a bit once I'm done with this last part, which is integrating herbs and spices into diabetes management plan safely. So अब हमारे क्या क्या steps हैं, हम जो कि इनको safely integrate कर दें अपने plan में. पहले तो आप अपना check it with your doctor before starting any herbs or supplements. Do not start anything on your own. Okay, then you start with small amounts. Gradual introduction minimizes the risk of drastic blood sugar fluctuation. So let's say कि अगर आप cinnamon का भी ले रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा आपने लेना है, या आपने 2-3 दिन के लिए देखा, फिर आपने अपनी continuously monitor your blood sugar and see कि क्या इफेक्ट आ रहा है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो अपना बढ़ा सकते हैं. Now monitor blood sugar levels regularly. ये जो है ना बड़ा important है. Adjustment to medication dosage may be needed. And the look for quality and purity. Choose high quality sources free from additives or contaminants, especially for herbal supplements.
Some herbal products may contain undisclosed ingredients that can impact diabetes medication. So ये important चीज जो है ना वो आपको हर चीज में है आपका whether you have excuse me, whether you have diabetes or no diabetes, it doesn't matter, but you must read all the labels. And you know यहाँ पर एक अच्छा rule ये है कि you know nothing you can sell without a label. So it has to be, and then you know like check out for anything which you are not familiar. And these days, you know, like your Google and your ChatGPT, everything is so convenient. से आप उसका नाम डालेंगे आपको पूरा उसका पता चल जाएगा कि ये है क्या. So stay away from any artificial ingredients or any you know like additives, any contaminants, and you know like उसको आप avoid करें. तो good quality again good quality herbs भी जो है वो बड़ा important है. Avoid combining too many at once, like mixing multiple blood sugar affecting herbs, which is an answer to your Sultana आपके लिए है कि आप बहुत Yeah. सारी चीजों को आप combine कर रहे हो. तो Yeah. वो जो है वो थोड़ा सा उसको आपको I think Okay. इसको बीच में gap देना चाहिए है. Sure. Be cautious with herbal teas and supplements. Herbal teas may contain potent extract that interact with medications. Check ingredient list before consumption. Supplements may have concentrated doses and increased risk of stronger effects. So basically, these are some of the steps that you should be following. And again, you know, quality reading the nutrition label or product label, which is very important. And also, let me just finish this, and then I will open up for the discussion. And so I'm ready for your questions now, and then let's start a good because it's a very interesting very important topic, because sometimes you know हमें पता नहीं चलता है कि where are the symptoms और हमारा blood sugar इतना fluctuate क्यों हो रहा है. So you know, and sometimes you know we don't even pay so much attention to what we are what supplements we are eating, what cultural beliefs we are carrying. So we have to be Yeah. very This is very good. Yeah. yeah. So yes, I'm open. Anybody questions? I have one question. Yes. Now 10 days. अच्छा 10 दिन से ना 10-12 दिन से जी जी. मेरी वाइफ खाना के बाद मेरे को जो है ना आम का रस के साथ दही मिला के उसकी लस्सी बना के देती है, तो थोड़ा बढ़ जाता है, फिर एकदम कम हो जाता है. शुगर बढ़ 12-13 जाता है days. आपका? शुगर बढ़ जाता है? थोड़ा सा होता है. फिर अभी आज भी मैं थोड़ी देर पहले पिया है. अभी देखो अभी मेरा 123 है. That's good. लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि जब भी आपने आम का शौक है, आपको आम खाना है ना, तो आप उसको खाने के बाद ना खाएं. आप उसको अलग से खाएं. तो अच्छा, आपका खाने के पहले तो पी ले जो भी है. हाँ, जो भी आपका फ्रूट वगैरह है वो आप, क्योंकि एक तो उसका जो डाइजेशन है वो भी इफेक्ट हो जाता है, फिर आपको उतना उसकी ओके जो ओके. न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिलेगी जितना कि आपको उसको अलग से आप तो खाएंगे. ये सब जूस जो मेरे को देती है, प्लम्स का है और दूसरे जूस है वो देती है, मौसम्बी है, तो वो अब आपका सजेशन है जो मैं सजेस्ट करूंगी कि जूस को आप कम करें, आप पूरा फ्रूट खाएं, क्योंकि उसके साथ जो है ना वो फिर या तो ये कि आप पूरा वो उसमें स्मूदी में डालकर वो कर रहे हैं तो उसमें फाइबर भी आ रहा है साथ. आप अगर खाली वो फाइबर उसका निकल जाएगा, खाली जूस आएगा, देन दैट्स नॉट गुड, बिकॉज वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर रह जाती है फिर उसमें. मगर रात को एवरी डे नाइट को हम लोग खाना नहीं खाते. एक पॉपकॉर्न और दूसरा जो है ना कोई भी फ्रूट होता है ना वो खाते हैं. नहीं, बट वो अगर आपने मेरा पहले वाला जो है वो मेरा सुना होगा, आप जाकर दोबारा से सुन लीजिएगा. मैंने आप लोगों को सबको ये बोला था कि डायबिटीज में जब भी हो तो आप लोगों को खाना स्किप नहीं कर सकते हैं आप. यू मस्ट हैव फूड एंड you must have like protein with every meal. You cannot skip meals and you cannot have like different timings. अगर आपने carbs को करना है तो divide करें throughout the day. ठीक है? Thank you. Yes, thank you, ma'am. Okay. Any other question? Doctor, I always skip dinner. मेरा reason ये
2-3 घंटा पहले खाती हूँ, लेकिन फिर भी डिनर कई बार मेरा स्किप होता है. द रीजन इज दैट आई हैव एसिड रिफ्लक्स प्रॉब्लम. सो मैं ट्राई टू अवॉइड करती हूँ कि मैं खाना रात को ना खाऊं 8 hours. अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी. Right. So acid reflux के लिए ना you can do all the things that आप कर रहे हैं कि जब आप upright होकर खा रहे हैं, आप chew properly कर रहे हैं आप उसको, and you have small meals. मतलब आपको बहुत ज्यादा आप skip पूरा ना करें. जैसे कि आपने 2 घंटा मतलब आपने एकदम से बड़ा मील नहीं लेना है. एसिड रिफ्लक्स उसमें ज्यादा होगा. और खाने के बाद अपने फौरन से बैठना नहीं है, आपने वॉक करना है उसमें. एंड अपराइट होकर खाना है. बैठे हुए पोजीशन आपकी खाने की बिल्कुल सही होनी चाहिए है. Okay, that sounds good. बट मेक श्योर कि लाइक इफ यू आर लाइक लेट्स से कि अगर आपने 3 बजे खाया है तो आप 5 बजे या 7 बजे आप 2 घंटे के इंटरवल के बाद थोड़ा खाएं. प्रोटीन को मेन रखें. आप स्पाइसी खाना नहीं खाएं, बहुत मसाले वाला खाना ना खाएं. दैट विल हेल्प विद एसिड रिफ्लक्स. Yeah, maybe. Yeah, inshallah. Okay. Any related to this topic or anything related to this one? और एक बात मुझे कहनी है आपसे. जी. पहले एवरी डे मॉर्निंग को मैं जो ऑर्गेनिक जो एग्स है ना वो खाता था, मगर मिरी बहुत डालता था, ब्लैक पेपर. अभी मैं तकरीबन एक महीना हो गया मैं बंद कर दिया हूँ काली मिरी, क्योंकि वो खाता हूँ तो फिर मेरा हार्ट बर्न होता था जो ब्लैक पेपर से. जी. हाँ, अभी नहीं है जरा भी, मगर Okay. मैं मेरी थोड़ा सा साल्ट डालता हूँ, एकदम जरा सा साल्ट डालता हूँ मॉर्निंग अच्छा. को ब्रेकफास्ट में खाने में, और कोई चीज नहीं डालता हूँ. अच्छा, आप सॉल्ट को तो मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगी. स्पेशली बॉइल्ड एग में आपको सॉल्ट की जरूरत है नहीं नहीं एक्चुअली. बॉइल्ड ओट में नहीं खाता हूँ. अच्छा, बॉइल्ड एग में नहीं. तो सरसों तेल का एक बोटी पे any सरसों added salt is not recommended. ओके. अच्छा. Okay. So कोशिश करें कि जितना आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करें. बट एडेड सॉल्ट जो खाने में थोड़ा पकता है जो उसमें डलता है वो सही है. बट और दूसरी चीजें डाल दें कभी कोई अगर. अंडा बनाती है तो उसमें इसमें मेरी वाइफ है साल्ट नहीं डालती है, वो मैं थोड़ा सा डालता हूँ, वेरी वेरी स्मॉल, जैसे बस. तो फिर मेरे को है ना अंदर में जो कभी यू फील बेटर. ठीक है. अगर आपका हार्ट बाकी चीज के ऊपर अगर आप बाकी चीज के ऊपर अपना सॉल्ट को मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है. अगर आप थोड़ा सा उसमें डाल रहे हैं दैट्स ओके. बट बाकी चीज में भी अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं या पैकेट की चीजें आप बहुत खा रहे हैं तो फिर उसमें आपको बहुत सोचने की जरूरत है फिर. मेरा अलग बनाती है, तीखा नहीं होता जरा भी तीखा नहीं. ओके. ज्यादातर हम लोग वेजिटेबल्स डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है. जी. मुझे एक और क्वेश्चन है जी. ये दिस इज जनरल क्वेश्चन कि चाइनीज सॉल्ट जो हम डालते हैं, फॉर एग्जांपल समटाइम्स आई कुक चाइनीज, राइट? No, तो अगर मैं no. डालती हूँ तो वो चाइनीज सॉल्ट इज बैड फॉर अस? Well, it's actually like I particularly don't use it because I feel कि it's MSG कुछ लोगों के ऊपर ये reaction कर देता है. Not everyone, but it's better to avoid. Yes. And Chinese उसमें अगर आपने डालना है ना तो you can use chicken powder. But chicken powder एक मिलता है जो आपकी लोकल ग्रोसरीज में मिलता है. Yes. पाकिस्तानी ग्रोसरीज में चिकन पाउडर वो थोड़ा सा आपको एक वो फ्लेवर दे देता है. बट अवॉइड चाइनीज सॉल्ट. Okay. Thank you, Naseem. That was a good question. Yes. Thank you so much, Sultana. Okay, good. And so Sultana, just coming to your वो कि आप 2-3 चीजें साथ साथ ले रहे हैं तो कोशिश करें कि एक वक्त में आप एक चीज को रखें. नॉट करेला का जूस भी आप साथ ले रहे हैं, और अगर आप सॉरी अगर आप दूसरी चीजें भी तो 2-3 चीजें को एक साथ जो है ना वो मल्टीपल ना करें. आपकी ब्लड शुगर पर फिर मेडिकेशन को जो है वो आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा अपना. Okay, sure. ठीक है. ओके. एनीवन एल्स? आप कनोला ऑयल का वापस एक मर्तबा बता दें. थैंक यू सो मच डॉक्टर नरगिस. ऑलवेज आपका सेशन सब बहुत ही अच्छा लगता है और सब अटेंड करते हैं. थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू आप लोगों का. यू ऑल अपने अटेंड करते हैं. डॉक्टर नरगिस ने लास्ट टाइम बोला था ना कनोला ऑयल का, तो प्लीज कनोला ऑयल यूज, ट्राई नॉट टू यूज इट. शी हैड
राइट, आई फील कि कनोला ऑयल का अगेन, ये जो एक और सवाल था, आई थिंक नाज़नीन का सवाल था, उनका ये था कि कनोला ऑयल एंड विच वन इज फ्रॉम द सेम सीड, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, which is not true, it's not from the same seed. And mustard oil has got more benefits, and canola Yes. oil का जो कुकिंग के बाद और वो सारा कुछ, these oils आपके ओमेगा 6 को बहुत हाई कर देते हैं, तो आपका ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है ना, वो बिल्कुल ऑल्टर कर देते हैं ये ऑयल. सो बेस्ट प्रैक्टिस इज टू हैव ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल जो है वो इज ओके, घी इज गुड, घी यूज करें आप लोग, सरसों का तेल इस्तेमाल करें. Okay. Okay. And they can have half a avocado every day. That's okay. Yeah. Avocado is good fat. It is good. And but just keep the balance. Do not skip milk. Oh, sorry, meal. I'm sorry. Do not skip meal, and make sure कि आप carbohydrate को consistently अपनी उसमें रखें. So ये आपके लिए बड़ा important है, because skipping meals is not the solution, and आपकी blood sugar fluctuate बहुत करती है, फिर उसमें आपकी बॉडी को भी एक आदत हो जाती है, तो आप बॉडी को जो है ना वो शॉक्स मत दें. याली मदद, मुझे क्वेश्चन. थैंक यू. You're welcome. Thank you. Any question? Who's asking? Yes. हाँ, शीरीन बात कर रही हूँ. जी शीरीन. क्या बोले, करेला जूस और दूधिया, कद्दू जो बोलते दूधिया, उसका जूस मिक्स करके साथ में ले सकते हैं? वो दूधिया क्या है? कद्दू. Oh, कद्दू. अच्छा, why do you want to mix these two? आपको क्योंकि mix कद्दू क्यों जूस करना है? भी पीने को बोल रहे हैं और करेला जूस भी पीने का है, तो जूस नहीं निकालती हूँ मैं, मिक्सी में डाल के सीधा वो मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा पानी डाल के उसको पी ले रहे हैं. अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगी कि इसको मिक्स ना करें. आई फील कि इसको मिक्स ना करें. आप कुछ दिन के लिए करेला पी लें, कुछ दिन के लिए कद्दू पी लें. नॉट जैसे अभी मैं आप लोगों को सबको कह रही हूँ कि 3-4 चीजें एक साथ ना शुरू करें, और लाइक 1-2 चीज को रखें और उसके बाद कुछ दिन के लिए उनको रखें, फिर छोड़ दें, फिर कुछ दिन के लिए दूसरी चीज शुरू कर दें. एंड ब्लड शुगर को कंटिन्यूअसली मॉनिटर जरूर करें अपना. हाँ. और ज्वार बाजरा वो भी मिलाना नहीं है. ज्वार बाजरा आपको मिलाना है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. वो तो आप मिला सकते हैं. ज्वार ठंडा है, बाजरा गर्म है. अच्छा, ये जो है ना, इसके इस थ्योरी के ऊपर मे बी आई शुड टॉक टू मे बी अनदर सेशन. बट ठंडा गर्म जो है वो इज नॉट सो सच अ लाइक, ये भी अगेन हमारे कल्चरल के बहुत सारी चीजें हैं, बट मे बी आई विल टॉक वो. बट आप अगर उसको अलग अलग बनाना चाह रही हैं, आप अलग अलग बना लें, लेकिन पर्सनली आई फील कि ये ठंडा गर्म का इतना कॉन्सेप्ट ऐसा साइंटिफिक बेस्ड नहीं है ये. ओके. क्योंकि आजकल मैं ज्वार और बाजरा अलग करती, लेकिन उसमें फिर दूसरा मिलाती, रागी और ओट, फ्लैक्सीड और वो सब मिला लें आप. वो मिला के या तो ज्वार या तो बाजरा, बाकी सब चीजें तो होती ही है. रागी इज वेरी गुड. रागी इज एक्सीलेंट. क्योंकि रागी की अलग से बनाओ तो रोटी अच्छी नहीं बन रही, बहुत कड़क हो जा रही है. हाँ, मिक्स करना पड़ता है. गुड. एनी अदर क्वेश्चन? आपको कोई और सवाल है? नहीं, आई एम डन फॉर टुडे. Okay, good. Thank you so much. Thank you very much. Thank you आप लोगों के सबके आने का बहुत शुक्रिया. And then inshallah will and again I ask you कि अगर कोई भी आप लोगों को टॉपिक है जो कि आप लोग को समझते हैं कि आपको you need to learn more, तो आप प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताइएगा. They can communicate with me. चाहिए. Okay. आज का रिकॉर्डिंग आ रहा है ना? जी, रिकॉर्डिंग आपको YouTube के ऊपर मैंने जो डाला हुआ होता है वो प्लीज आप लोग शेयर कर लीजिएगा. Coordinators, you can share with all of your patients. So and वो आपके उसमें भी आ जाता है, हेल्दी के उसमें भी आ जाता है. ठीक है, 1-2 बार सुन लेना फिर याद रहता. थैंक यू. का जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देंगे तो इजी हो जाएगा वहां से. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू एवरीवन. बहुत शुक्रिया. थैंक यू Thank you. Yeah. Thank you.